Good morning, dear students. In last lecture, we have explained a very important experiment for the discovery of electron with the help of cathode ray tube. आप सब जानते हैं कि कैथोड और एनोड दोनों प्लेट को जब हायर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तब कैथोड में से रेस निकलते हैं. These rays are known as cathode rays, and this is the discovery of electron. Now, the next question belongs to the same experiment. The question belong to same experiment. Which type of question will arise in our mind? Just see. अगर कैथोड रेस में मोशन है, कैथोड रेस में मूवमेंट है, तो उसका मास होना चाहिए. ये सभी स्टूडेंट्स के माइंड में पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी पार्टिकल मूवमेंट करता है उसमें मास होता ही है. विदाउट मास particle cannot move. So is it clear in your mind that if cathode rays having movement through the fluorescent screening, at that time it has mass, at that time it has charge. Either it is negative, positive, neutral, but we know that electron having negative charge. So the experiment is here. The question is here that explain charge to mass ratio of electron. So, which type of experiment and which type of conclusions obtained from the experiment of cathode ray tube? We will explain this in our question. Okay, just see. In 1897, J. Thomson measured ratio of charge and mass, that is ME, mass of electron. Mass of electron. Is it clear? So the first point is here that in 1897, J. Thomson measured the ratio of charge and mass of electron. The charge is known as E and the mass of electron is known as Me. Mass of proton, Mp. Mass of neutron, Mn. And mass of electron is Me. And for this explanation, J. Thomson used cathode ray tube. So J. Thomson used cathode ray tube and measured the charge and mass ratio E by M, charge E next upon mass. So यहाँ पर कौन सी बात मायने रखती है, याद में रखिए, सुनिए अच्छी तरह से समझिए कि हमने देखा कि कैथोड में से रेस बाहर निकलते हैं और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कोलाइड्स होते हैं. स्पॉट वहां पर दिखता है, दैट मींस उसमें मोशन है. अगर उसमें मोशन है तो उसमें मास है, अगर उसमें मोशन है तो उसमें चार्ज है. दिस conclusion, this important point will decide by J. Thomson. So, in 1897, J. Thomson measured the ratio of charge and mass of electron, and he is using cathode ray tube for this experiment. Now, after applying cathode ray tube, applying electric and magnetic field. After applying
electric and magnetic field on the perpendicular perpendicular way. So just see here, this is electrical field and this one is magnetic field, and Thomson see the path of electrons perpendicular way and the check path of electron. So what is here, just see, जब हमने कैथोड रे ट्यूब देखी हुई थी ना, उस कैथोड रे ट्यूब पर हम ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेट रख देंगे और देखेंगे उसके बाद मोशन में यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है, मोशन में क्या डिफरेंस हो रहा है वो हम मेजर करेंगे, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, that will be decided with the help of after applying magnetic and electrical field on the perpendicular way. Is it clear to you? So in 1897, J.J. Thomson measured the ratio of charge and mass of electron, and he is using cathode ray tube for this experiment. And the next important point is here that after applying electrical and magnetic field on the perpendicular way, he will check the path of electron. Just see, he is checking path of electron. तो इसमें important बातें हम क्या देख रहे हैं, देखिए कि जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तब इलेक्ट्रॉन के पाथ में कौन सा डेविएशन हो रहा है ये हम देखने वाले हैं. बट जस्ट सी डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, deviation of electron having three important matters. If these three important matters will happen, then deviation of electron is possible. So deviation of electron is possible for following important matters. देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि किसी भी पार्टिकल में मोशन रहता है, डेविएशन रहता है, तो ऊपर कौन सी मैटर्स अप्लाई करती है इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम ये देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. देखिए, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. Second one, mass of electron. And the third point, strength of electric and magnetic field. देखिए बहुत ही सिंपल मैटर है. इस एक्सपेरिमेंट में आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पार्टिकल्स में समझ लीजिए अगर डेविएशन है, मोशन है, तो उस पर कौन सी तीन इंपॉर्टेंट मैटर अप्लाई हो सकती है. देखिए पहला होता है मास. एक सिंपल सुनिए, अगर हम इंडस्ट्रियल पर्पस को चेक करें तो इंडस्ट्रियल पर्पस की जो चिमनियाँ होती है उसमें से समझ लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसा गैस बाहर निकलता है. सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास चेक करें तो 64 है और एयर में जो ऑक्सीजन है उसका मोलर मास 32 है. अगर हम दोनों का मास चेक करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास ज्यादा है तो उसका मोशन, उसका डेविएशन स्लो रहेगा. समझ सकते हैं, जैसे ही गैस और कोई भी पार्टिकल हेवी है उसकी मोशन, उसकी स्पीड डेविएशन की स्लो रहेगी क्योंकि वो हेवी है. ऑक्सीजन जल्दी से आगे चला जाएगा, हाइड्रोजन उससे भी ज्यादा स्पीड पर रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही लाइट वेट का गैस है. तो जितना ही गैस हल्का उतनी स्पीड ज्यादा, उसकी डेविएशन ज्यादा रहेगी. तो किसी भी पार्टिकल में अगर डेविएशन है तो उसका मास बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन में डेविएशन है तो कौन कौन सी पर्टिकुलर बाबत जो यहाँ पर रहती है, पर्टिकुलर मोशन मोमेंट यहाँ पर रहती है, इंपॉर्टेंट मैटर्स यहाँ पर रहती है, वो कौन सी है. तो पहली है मास.
क्योंकि मास लाइट होगा, स्पीड ज्यादा रहेगी। ओके। सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी चार्ज होता है ना उसमें मोशन रहता है, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। न्यूट्रल चार्ज वाला जो न्यूट्रॉन होता है ना वो भी सेंटर में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन का भी रोटेशन है, प्रोटॉन का भी रोटेशन है। सो यहाँ पर देखना है कि मैग्नीट्यूड रहेगा तो मोशन रहेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। द सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर जो चार्ज रेशियो में डिसाइड करना है उससे पहले थॉमसन ने क्या सोचा, हम वो बात कर रहे हैं। थॉमसन ने क्या कहा, तो इलेक्ट्रॉन में अगर मोशन है तो उसमें चार्ज है, मोशन है तो उसका मास है, उसका रेशियो उसे पता करना है। इसके लिए उसने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को देखा, उसका जजमेंट लेते हुए उसे तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखने को मिले कि डेविएशन है इलेक्ट्रॉन में तो तीन इंपॉर्टेंट मैटर्स यहाँ पर कंसीडर करती है। इंपॉर्टेंट मैटर नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स, सेकेंड वन मास, और थर्ड वन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ, कितना वोल्टेज हम पास करते हैं वो भी मायने रखता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज वैल्यू हाई, मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड हाई, डेविएशन हाई, उसका डेविएशन ज्यादा रहेगा। यहाँ पर लाइट वेट उतना डेविएशन हाई और स्ट्रेंथ हाई, डेविएशन हाई, strength is higher then deviation is higher. So this is the important parameters, this is the important parameters of deviation of electrons. So these three facts are responsible for the deviation of not only electron but the deviation of any particles, charge. Second point, mass, and third one is strength. तो अभी हम आ रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट की तरफ, पर मैंने कौन सी यहाँ पर फैक्ट आपको बताया मैं उसका रिवीजन करता हूँ। जस्ट सी, इन 1897 J.J. Thomson measured charge and mass of electron. He is using cathode ray tube for this experiment. When we apply electrical and magnetic field on the perpendicular way, just see the path of electron will change, and the deviation of electron is responsible. Three responsible facts or factors are applied for the deviation of electron. Which are these three? The magnitude of negative charged electron, higher the magnitude, higher the deviation. Mass of electron, lower the mass, higher the deviation. And the strength is high, then the deviation is high. These are the three important factors for the deviation of electron. Now the experiment is here. Just see, this is cathode, this is anode. यहाँ पर हायर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। हमने देखा था कि एनोड पर हम होल करेंगे तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पॉट आएगा। अभी क्या करना है, देखिए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन और ये एनोड के बीच में हम यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एनोड और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बीच जो ZNS की बनी हुई है उन दोनों के बीच में हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है देखिए, when we apply only electrical field, when we apply electrical field, just see क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर स्पॉट हो रहा है पॉइंट ए पर। देखिए सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, मैग्नेट नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन का डेविएशन है ना वो यहाँ पर आ रहा है, स्पॉट ए, स्पॉटिंग हो रहा है पॉइंट ए पर।
स्पॉटिंग हो रहा है ऊपर की तरफ पॉइंट ए पर, जबकि सिर्फ हम अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज। यहां पर अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो स्पॉट कहां पर हो रहा है? पॉइंट ए पर। ओके, व्हेन वी अप्लाई ओनली मैग्नेटिक फील्ड, स्पॉट हो रहा है पॉइंट सी पर। देखिए, सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल देता हूं यहां पर से, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर रखता हूं, तो नीचे की तरफ यहां पर कैथोड फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पॉट आ रहा है नीचे। सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, और इक्विलिब्रियम में बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिकल and magnetic field, or in the absence of electrical and magnetic field, this ray, this spot will go on point B। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यहां पर मैं कहा दोनों नहीं रख रहा हूं और दोनों को इक्विलिब्रियम में रख रहा हूं, दोनों को साथ में रख रहा हूं, थोड़ा सेट करके वोल्टेज को मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर। तो ये स्पॉट है ना, वो पॉइंट बी पर रहने वाला है। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन बोथ विल अप्लाई, or absence of electric and magnetic field, straight line will possible and the ray of spotting will go through a point B। तो वो पॉइंट बी पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ये एक्सपेरिमेंट में, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो स्पॉट गया ए पर, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं सी पर, दोनों साथ में और एब्सेंस में जाते हैं तो बी पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो डेविएशन है उस पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इफेक्ट करते हैं। इसलिए प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज electromagnetic wave, that is confirmed। Electron is electromagnetic particle, it is proved with the experiment of J.J. Thomson। Is it clear to you? ये इस पर प्रूफ हो गया। और ये मिलीकान का एक्सपेरिमेंट है। क्या है मिलीकान एक्सपेरिमेंट? मैं आप सबको बताता हूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E is equal to 1.602 into 10 raised to minus 19 कूलम। यूनिट क्या है उसका? कूलम यूनिट है चार्ज का। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me यहाँ पर है 9.109 into 10 raised to minus 31 किलोग्राम। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसकी कैलकुलेशन हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। मिलीकान एक्सपेरिमेंट, चार्ज के बारे में बातें करेंगे, मास के बारे में बातें करेंगे। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है कि ये कहां से आ गया है फिगर, बट ये फिगर आपको याद रखना है। ये मैं लिख के दे देता हूं, यहाँ पर लिख लिया है, आपको भी लिख के ही आंसर देना है, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये है 9.109 into 10 raised to minus 31 kg। Just remind this important point that you have to remember E and M and the ratio of E by M। 1.602 into 10 raised to minus 19 upon 9.109 into 10 raised to minus 31 is equal to 0.175 into 10 raised to 12 coulomb per kg। So 1.75 into 10 raised to 11 C पर kg। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ये सब मालूम रहेगा कि इसको 0.175 मतलब क्या होता है 1.75 into 10 raised to minus 1, तो 12 में से 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, बचता है यहाँ पर 11। ये हो गया E by M, E by M, ratio of charge and mass of electron। This is the our important question स्टूडेंट्स, ख्याल में रखिए। आपको होमवर्क में क्या करना है, फेयर बुक में क्या करना है। फेयर बुक में आपको बोर्ड में लिखी हुई मैटर्स लिखनी है, बोर्ड में लिखी हुई मैटर्स आपको लिखनी है, क्योंकि एमसीक्यू जेडब्ल्यू नीट के जो भी रहेंगे वो आपको इससे अच्छी तरीके से आ सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट है हमारा।
इसमें पूरी लाइन नहीं लिखी हुई है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और मैं जो आपको दूसरा फोटोग्राफ इमेज भेजूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में साथ में, उसको आपको 2 टाइम्स होमवर्क में लिखना है, ठीक है। 2 टाइम्स होमवर्क में वो करना है जो डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको फेयर बुक में लिखना है, बिकॉज दिस आर द कॉन्सेप्ट। कितने स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं होमवर्क क्या करना है क्या करना है, ये तुम्हारा होमवर्क नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। होमवर्क में मैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव भेजता हूं उसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अगर बोर्ड पे लिखा हुआ जब होमवर्क करना होगा, मैं आपको लेक्चर में ही बोल दूंगा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है वो होमवर्क है, तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ होमवर्क नहीं, ये दूसरी इमेज में भेज रहा हूं वो होमवर्क है, 2 टाइम्स वो करना है। So again last time मैं आंसर रिपीट कर देता हूं। In 1897 J.J. Thomson measured the charge and mass of electron with the help of cathode radio. When electrical field and magnetic field apply on the perpendicular way, J.J. Thomson checked the path of electron, and the deviation of electron will depends on 3 important facts. Fact number 1, the magnitude of negative charge electron. Fact number 2, mass of electron. Fact number 3, strength of electric and magnetic field. These are the 3 important factors. Magnitude is high, deviation is high. Mass is low, deviation is high. And the strength of electric and magnetic field is high, deviation is high. When we apply only electrical field, the ray will go through, the spot will go through on a point A. When we apply magnetic field, it will go through in a point C, but on the absence of electric and magnetic field, it will go through in a point B, straight line. So it has charge. It is proved that electron having charge 1.60 × 10⁻19 coulomb, it has mass 9.109 × 31 kg, and the ratio of electron and mass of electrons are here 1.75 × 10⁻11 coulomb per kg. So this is the charge to mass ratio of electron. तो आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से देखना है। आज के लिए हमें इतनी ही इंपॉर्टेंट मैटर्स ख्याल में रखनी है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से होमवर्क भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।